क्या था यार, वो क्या बताने का था? अरे वो गोवा वाला बता ना, बंदियों लड़कियों वाला। अच्छा वो वाला वो थोड़ी ना बता सकते हैं। रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि लाइक 20 या 21 ईयर्स के, जैसे कि मैंने एक बार किया था, डोर वगैरह लॉक करके मैं सो गया था। सो हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ रखना चाहिए वैसे, लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी एज मैं वही बोल रहा था। रिकॉर्ड तो नहीं होगा ना? अरे गडकरी रिकॉर्ड मत कर। Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. I'm Gaurav, founder and CEO of It's All About Journey. I'm here with a very interesting topic today. It's gonna be a podcast again, and the topic is what things you should learn or what things you should know when you are in 20s. So most of the time you search for these kind of things on the internet or on a YouTube, but you find the videos made by the motivational speakers or the people who are not in 20s or the people who have achieved tremendous success in their life, and somewhere we feel like मैं तो इससे रिलेट ही नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज दैट पर्सन इज नॉट रिलेटेड टू मी, और मेरे लाइफ में तो ऐसा कुछ नहीं है. सो दिस टाइम आई एम ब्रिंगिंग अप समवन फॉर यू हु कैन actually tell you and where you can actually relate what you can do in your 20s. The reason why you can relate is because that person is just 21 years old and the one journey master who is working in It's All About Journey itself. And we have Journey Master Rutvik today with us for the podcast, where you will be learning about what things you should do when you are in 20s. Before starting the video, if you haven't subscribed to our channel yet, do subscribe to our channel and share this video with all the people who are in 20s and who want to do something tremendous in their life. So we have Rutvik here with us today. Not just Rutvik, but Journey Master Rutvik. And as I told you before, he's just a 21 years old, but he have achieved a lot of things in his life in terms of learning soft skills or in terms of networking or talking more with people or consuming more knowledge, just because he is hanging out with older people than him, which is helping him a lot to achieve more success in his life. We have Rutvik here. Rutvik, please introduce yourself. Hi everyone, this is Journey Master Rutvik, also known as Rutvik Chauhan, you can say. So I'm a head of person training department and I'm working with It's All About Journey since more than 2 years. Yep. We are going to talk about what things we should do in our 20s. जब मैं 21 साल का था तब मैंने क्या किया था मुझे भी पता नहीं है, एंड मेरे लाइफ में कुछ स्पेसिफिक गोल्स भी नहीं थे. बट द बेस्ट पार्ट इज ऋत्विक के पास काफ़ी गोल्स है लाइफ में, एंड काफ़ी चीज़ें भी है जो आपके साथ वो शेयर करता है. सो व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग यू वुड लाइक टू टेल टू एवरीवन कि अपने 20 साल की उम्र में या 21 साल की उम्र में क्या करना चाहिए? Okay, so like अभी like even I'm a learner, right? So I would say कि मतलब starting में अगर आपको ऐसा कुछ पॉइंट है फिर आपको किस चीज़ पे वर्क करना है, so I would say कि अगर आपके कुछ सॉफ्ट स्किल्स रहते हैं so आपको उसके ऊपर स्टार्ट में like स्टार्टिंग वहीं से करनी चाहिए. So अब अगर उस पॉइंट पे कुछ बोलना रहे तो आप बोल सकते हो कि like सॉफ्ट स्किल्स जैसे कि आप बोल सकते हो नेटवर्किंग, जैसे कि आपने इंट्रोडक्शन में बताया. So सॉफ्ट स्किल्स like मेरे एज के लोगों में like वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बिकॉज वो एक ऐसा स्टेज है कि जहाँ पे आप आपका like पूरा कम्युनिटी बिल्डअप कर रहे हो. So अगर आप like 20 या 21 ईयर्स के एज में हो और अगर आप आपका स्किल सेट कर रहे हो, so that will be a best part. So in person, like what I try to do is like even I have a lot of clients, right? So अब मैं मेरे personal level पे उसको ऐसे ट्राई करता हूँ कि for example communication skill हो गया, so interacting with more peoples, more clients. So उससे एक आपको भी एक आपका जो point of like view होता है या फिर आपका जो vision होता है, so वो broad होता रहता है. या फिर you can say कि like आपको ज़्यादा लोगों में like interaction करने के बाद वो एक आपका ideas सारे clear होते रहता है. So you like instead of reading a books, you can say आप अगर लोगों में जाके ज़्यादा interaction करते हैं, so that will be a best part. Yes. So the networking skills usually help a lot because future में आगे जाके if you are becoming an entrepreneur or anything, if you are going out anywhere or if you are going for a job, networking with the people is one of the best soft skill which you can have, because which is gonna help you out a lot to consume more knowledge, understand human behavior, learn about human psychology. बहुत सारे लोग ये चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं एट द एज ऑफ 20-21, बट पर्सनली आई ऑल्सो फील लाइक यू शुड लर्न द स्किल्स. 20-21 साल के लोगों में काफ़ी बार ये इश्यूज होते हैं कि रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं, एंशियस हो जाते हैं जब उनके रिलेशनशिप में ब्रेकअप होते हैं, उनको अच्छे पार्टनर्स नहीं मिलते, रिलेशनशिप में खुश होके भी वो प्रायोरिटाइज उनके काम को नहीं कर पाते. उसके साथ फ्रेंड्स होते हैं, लाइक इट्स टू हार्ड टू फाइंड गुड फ्रेंड्स नाउअडेज. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस पॉइंट?
Okay, so I would say कि like I mean it's good to have friends in your life, but it has to be like you can say कि like you have to identify the good persons in your life. ऐसा नहीं है कि like I mean बहुत बार ऐसा होता है कि like 19 या 20s की एज में ऐसा होता है कि like you're like spending your time with your college friends, but उसमें भी आपको वो चीज़ अगर पता नहीं है कि like आपको कौन हेल्प आउट कर रहा है या फिर like कहाँ पे आपका टाइम स्पेंड हो रहा है ज़्यादा विदाउट एनी प्रोडक्टिविटी, सो वो आपको कहीं पे भी like जाके आगे फ़ायदा नहीं करने वाला है. सो मेरा ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा कि like for example even if you're having friends in your life, so you should आइडेंटिफाई दोज, या लाइक फॉर एग्जांपल अगर कोई मेंटर होगा या फिर लाइक आप बोल सकते हो कि इवन फ्रेंड्स हम ऐसा नहीं बोलते कि हमारी एज के होते हैं, सो फ्रेंड्स हम लोग बोल सकते हैं हमसे जो बड़े हैं, राइट. सो अगर हम लोग उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, सो दैट विल डायरेक्टली गोना हेल्प अस आउट इन आवर लाइफ एज वेल. लाइक और जहाँ पे बात रहेगी रिलेशनशिप्स वगैरह की, सो उसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा रहेगा कि लाइक इट्स गुड टू मेक मिस्टेक्स, राइट, बट ये भी पार्ट है कि लाइक आपको उससे लेसन्स लेना भी ज़रूरी है. ऐसा नहीं कि यू आर जस्ट लाइक वो एक कोट होता है कि लाइक जो फेलियर बोलते हैं वो सक्सेस का फर्स्ट स्टेप है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप अगर डायरेक्टली आप फेलियर के स्टेप्स पे चल रहे हो सो आप उसको लाइक फर्स्ट स्टेप नहीं बोल सकते हो. सो फॉर मी आई वुड से कि लाइक गलतियाँ करो. फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे फर्स्ट टाइम गलती हुई, सो जस्ट लर्न फ्रॉम दैट एंड जस्ट मूव ऑन and just try to be a better person. My point of view about friends and relationship is these two things are there to make you a good person. अगर ये आपके लाइफ में नहीं हो रहा है तो यू शुड चेंज थिंग्स, बिकॉज आपके फ्रेंड्स और आपका कोई पार्टनर आपकी लाइफ अगर बेटर प्लेस नहीं बना रहा है, रादर देन दैट वो आपकी लाइफ का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो यू शुड मूव फ्रॉम देयर एंड यू शुड लुक फॉर न्यू पीपल इन योर लाइफ. मोस्ट ऑफ द टाइम चीज़ें प्रायोरिटाइज करने में दिक्कत हो जाती है. आई 100% अंडरस्टैंड इट्स हार्ड टू प्रायोरिटाइज थिंग्स व्हेन यू आर इन 20s, बट still there is no any other option. If you are going through breakup or if you are going through a rough time in your life is that's how it's supposed to be. आपकी लाइफ ऐसी रहने वाली. You just have to accept the facts whatever is happening around you and you have to move on. Now talking about something which is mind blowing and that's a spirituality. मुझे भी मेरे लाइफ में spirituality ने काफ़ी हेल्प की है and even ऋत्विक को भी हेल्प की है. तो what do you think about spirituality and what experiences you have got by practicing like law of attraction or visualization? Exactly. So actually it's one of my favorite topic to talk about and I would say that like बचपन से हम लोग हमेशा spirituality या फिर visualization पे फोकस करते हैं, बट उस टाइम पे हम लोग को चीज़ें पता नहीं रहती कि लाइक इसको पर्टिकुलर वर्ड होता है. सो बीइंग अ किड लाइक हम लोग अगर कोई छोटे बच्चे को इमेजिन करते हैं, सो वो उसके एक अलग ही वर्ल्ड में लॉस्ट रहता है. लाइक यू कैन से अ डे ड्रीमर. सो हम वो बड़े होते जाते हैं और अपने को उस बात से थोड़ा दूर लेके जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग स्कूल में बैठे हैं, हम लोग किसी चीज़ पे फोकस करते हैं तो अपने को वो चीज़ से हटाया जाता है. बट आई वुड से कि वो चीज़ अगर कंटिन्यू रखे तो लाइक कोई भी लाइक 19 या 20s के एज में बहुत बड़े काम कर सकता है, बिकॉज मैं पर्सनली वही करता हूँ. सो मैं खुद को प्रेज नहीं कर रहा हूँ, बट स्टिल आई वुड से कि लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप स्पिरिचुअलिटी के वो फोकस करोगे, सो उसमें सिर्फ एक ही पॉइंट है दैट यू जस्ट हैव टू बी इन योर ओन वर्ल्ड, जो भी विजुअलाइजेशन लोग बोलते हैं. सो व्हेन इट कम्स टू योर गोल्स, व्हेन इट कम्स टू योर वर्क, सो जस्ट विजुअलाइज दोज थिंग्स, मैनिफेस्ट दोज थिंग्स. सो इवन मेरे केस में भी मैंने वही किया हुआ है. सो टू बी ऑनेस्ट स्टार्टिंग में थोड़ा सा वियर्ड लगता है कि लाइक लिटरली अगर ऐसा सोचने से कुछ होता रहेगा तो सभी लोग वो करते होंगे, बट ऐसा नहीं है. यू हैव टू वर्क फॉर इट. सो इन माई केस स्टार्टिंग में मैंने भी बहुत सारे विजुअलाइजेशन वगैरह ट्राई किए थे, वो भी गौरव सर ने सजेस्ट किए थे. सो उसके पहले मेरे को पता नहीं था कि ऐसा कुछ टर्म होता है, बट स्टिल मैं वो चीज़ें करता था. सो इवन दिस पॉडकास्ट इज द रिजल्ट ऑफ दैट ओनली आई कैन से. एंड सेकेंड थिंग लाइक आई अचीव्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन माई लाइफ जस्ट बिकॉज ऑफ मैनिफेस्टेशंस. इवन माई वर्क एंड लाइक यू कैन से every part of my life is just because of manifestation. Spirituality is very much interesting topic for me as well, because मैंने भी मेरे लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें अचीव की है by just visualizing a lot of things, even in my personal life and professional life. Probably I'm going to make a separate topic on how spirituality help me in my personal and professional life. ये भी podcast में बनाऊंगा. But yes, for sake of this podcast, you should practice spirituality when you are in 20s, because एक बिलीव सिस्टम होता है. अगर आप अभी उसको प्रैक्टिस करोगे और आपके साथ वो चीज़ें होती है तो आपको अभी उसको बिलीव करना बहुत ईजी रहेगा. बाद में अगर ऑब्वियसली आप कर सकते हो बाद में भी, बट इफ़ यू वो बोलते हैं ना, कोई भी चीज़ जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना अच्छा रहता है. That's how it is. One more point which I would like to talk about is becoming an independent person.
What do you think whether a person should be independent in 20s or not? Yes, one should actually, because it's the best feeling ever. That if you're not asking for pocket money to your parents and you're just 19 or 20 years old, so I would say that that's the best feeling. Because agar like if you're earning more than 10,000, like not even 10,000, we can say like just normal 2,000. But if you're spending that much of amount just for you, so I would say that's the best feeling ever. Because I started with 3,000, and even those 3,000 were like I can do anything with this. But like this is how it is. Like so, for example, let's say if you're into 19s, or like you can say if you're 20s, right? And I would say that you should start somewhere. Like you can say अगर आप just normal कुछ content डाल रहे हो या फिर कुछ भी soft skills बोल सकते हैं, जैसे कि digital marketing type कुछ हो गया, so उसमें जो आपको earning आती है, और अगर आप घर पे पैसे नहीं मांग रहे हो, so उससे जो आपका self confident build होगा, so वो किसी चीज़ को beat नहीं कर सकता. So this is the very best point which Rutvik have mentioned is about self-confidence. The best thing which you can have is a self-confidence, because that's going to help you out a lot in your life. तो एक अर्निंग वाला फीलिंग जो होता है वो आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस दे सकता है कि आपके लाइफ में भी आप कुछ अचीव कर सकते हो. एंड yes, it's a different feeling when you stop asking money to your parents. Your parents will actually feel proud about you, and it's not just about your parents, but आप खुद जो चीज़ फील करोगे वो एक बहुत अमेजिंग चीज़ है. एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट आफ्टर स्टॉप, एक बार आपने स्टॉप लगा दिया पैसे मांगने पेरेंट्स को, तो उसके बाद आप कभी आपके पेरेंट्स को पैसे नहीं मांगोगे. यू विल ऑलवेज struggle, and you will always work to earn money and spend it for yourself. One thing which I would like to talk here is about Indian culture and US culture. So कुछ दो तीन चीज़ें हैं जो मुझे US कल्चर में पसंद आती है. द फर्स्ट इज US में जो भी लोग होते हैं उनके जो किड्स होते हैं 18 ईयर्स के बाद में उनको खुद का पैसा कमाना पड़ता है. दैट्स वेयर दिस पीपल लर्न टू बी इंडिपेंडेंट पर्सन. तो 18 ईयर्स के बाद में उनके पेरेंट्स को वैसे भी पैसे मांगते नहीं है. और इंडिपेंडेंट बनना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. उसके बाद आप लाइफ में काफ़ी चीज़ें सीखते हो कि एक ऊपर सपोर्ट जब नहीं रहता है हमारे पेरेंट्स का, तब लाइफ को एक्चुअली कैसे जीना होता है. तो उसमें जो एक्सपीरियंस आपको आते हैं वो आपके लिए लाइफ टाइम के लिए एक लेसन हो जाते हैं. दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़, इट्स अबाउट ट्रैवल. यूएस में, नॉट ओनली यूएस बट इंडियन कल्चर में ये चीज़ नहीं है बोल सकते कि ट्रैवल करना, हम लोग ट्रैवल नहीं करते. एंड वी ऑलवेज थिंक कि ट्रैवल करना बहुत मुश्किल होता है, ट्रैवल करना बहुत एक्सपेंसिव होता है, उसमें काफ़ी खर्चे होते हैं. बट ट्रैवल इज़ समथिंग जो आपको करना चाहिए आपकी लाइफ में कुछ अच्छे एक्सपीरियंस लाने के लिए. एक कोट है जो मुझे बहुत पसंद है पर्सनली, विच इज़ die with memories not dreams. हम लोग हमेशा सोचते हैं ट्रैवल करने का, बट अगर हम लोग ट्रैवल नहीं कर रहे तो हम लोग मेमोरीज क्रिएट नहीं कर सकते. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस ट्रैवल वाला पार्ट? Yep. So to be honest, मैं तो स्टार्टिंग में ट्रैवल वगैरह कुछ करता नहीं था, बिकॉज आई वॉज अ टोटली इंट्रोवर्ट पर्सन. जैसे कि मैंने बोला कि लाइक स्किल सेट वगैरह का जो मैंने बोला था, सो स्किल सेट में भी लाइक मेरे कुछ यूएस क्लाइंट्स का ही मेरे को लाइक हेल्प आउट हुआ है. सो जब मैं उनके सेशन वगैरह लेता हूँ तो मेरे को एक चीज़ क्लियर होती है कि लाइक दे पार्टी अ लॉट, दे वर्क अ लॉट, एंड दे एंजॉय अ लॉट, एंड दे ट्रैवल अ लॉट. सो ट्रैवल से यू कैन से कि लाइक एक चीज़ सीखने को मिलती है, दैट यू कैन एक्सप्लोर द वर्ल्ड, राइट. सो लाइक अगर आप आपके घर में रह रहे हो, सो वो सिर्फ 4 वॉल्स के अंदर आपको आपके आइडियाज़ नहीं रखना है. सो जैसे कि आप अगर ट्रैवल कर रहे हो, नो मैटर कि लाइक आप कितना दूर जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, इवन अगर आप कोई लाइक बोल सकते हैं किसी लाइक पर्टिकुलर जगह पे विजिट कर रहे हो, सो वहाँ पे जाने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, जो भी आप लोगों से इंटरेक्शन करोगे, सो उससे आपके आइडियाज़ और विजन बहुत मतलब चेंज होते रहते हैं. और उससे लाइक फॉर एग्जांपल अलग अलग टाइप के कम्युनिटीज़ होते हैं, लाइक अगर आप उनसे इंटरेक्ट करोगे, सो आपके आइडियाज़ अलग होंगे, राइट. और जब उसके बाद जो आपका फेज होगा, सो दैट विल बी टोटली डिफरेंट. Here we can take a example and we can talk about the experience. हम लोग recently गोवा ट्रिप जाके आए, तो what was your experience after गोवा ट्रिप? गोवा ट्रिप में से क्या सीखने को मिला, क्या अच्छा एक्सपीरियंस था? So my experience was like that कि before गोवा ट्रिप I was like you can say I was confident, but अगर कोई ऐसे unknown लोग हैं या फिर कोई नए लोग हैं तो strangers से मैं कभी बात नहीं करता था. But in Goa I met a few friends. I had a talk with few foreign peoples as well, and they were like, I mean I got to know that they are YouTubers and all. Again मेरे को self confidence का थोड़ा सा issue था. So we met what was the name of that influencer?
Abhinav. So actually I met him first and I took that first step. So that is just because of that. Because अगर मैं गोवा नहीं जाता तो मुझे नहीं लगता कि मेरा उतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ होता. So yes, indeed, travel helps you a lot to develop your soft skills as well. Something like as listening skills, talking skills, and consuming more knowledge. ये सारी चीजें आपको सीखने को मिलती है travel करने के बाद भी. So talking about travel experience, हम लोग अभी गोवा जाके आए तो what things you learned after Goa trip and how the trip helped you to get back to work? Got it. So I would say that Goa trip was an amazing trip first of all. Second thing, after Goa trip I worked on my, like you can say, it helped me out to work on my self-confidence. Self-confidence as in like when it comes to professional life, so I was good at it. When it comes to personal life, I was like 19-20 type of thing. So like when we went to Goa, right? So Goa mein I made total 5 friends, and the best part is that those 5 were girls. Oh my God! Wow! Now coming on to the point, so like I met a friend, like I mean she was a girl only. She was 28 years old I guess, and she was an architect. She didn't knew that I was 21 years old, and it was just because of my communication skills that she thought that I must be like around more than 25 at least. So I met her, and since then I'm like, you can say it's like a wo jo rocket launch hota hai na, like that only. So as in it's when it comes to rockets, I'm referring my self-confidence, you can say. So this is how like Goa trip was for me, and since then I don't think so that I feel shy or something like that in my life from now onwards. So Rutvik have proved that developing soft skills can get you chicks actually. तो आपको काफी लड़कियों से बात करने का चांस मिल सकता है अगर आप आपके सॉफ्ट स्किल्स डेवलप कर रहे हो तो. समझ रहे हो आप? जोक्स अपार्ट, बट यस, लड़कियों के साथ बात करना भी किसी का कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सकता है. एंड नॉट जस्ट लड़कियां, आप अगर अच्छे लोगों के ग्रुप में हो और आपके पास सॉफ्ट स्किल्स है तो आप जाके किससे भी बात कर सकते हो. नेटवर्किंग स्किल्स यूज़ कर सकते हो. आपके जाके लोगों के साथ बात करके उनके साथ आपके आइडिया शेयर कर सकते हो. आपके बिजनेस के बारे में, आपके काम के बारे में डिस्कशन कर सकते हो, जो कि आपको हेल्प आउट कर सकता है. Hopping on to the last point of this podcast, and which is about our field and is about what we actually do. So what things we should do about fitness when we are in our 20s? Okay, so it's my you can say best topic till now. So you can say like when we enter into 18s or 19s, right? In short, मैं तो बोलूँगा कि like college life जब start होता है, so सब लोग को ये लगता है कि like मेरे muscles बनने चाहिए, मेरे को एकदम लड़कियाँ वगैरह मेरे पास आनी चाहिए, like that. So मेरा ऐसा कुछ point of नहीं था. Like मेरे केस में ऐसा था, you can say कि like मेरे को self confidence पे बिल्कुल भी मतलब ये नहीं था, right? So तो मेरा लो ही था starting से. So like कुछ time पे ऐसा था कि like मैं full depressed था कि like I don't look good, मेरी बॉडी भी अच्छी नहीं है, इवन मैं स्टडीज़ में भी वीक था. सो वो सब चीज़ तो ऑब्वियस है. सो आई स्टार्टेड वर्किंग आउट, एंड फ्रॉम दैट लाइक मतलब जो इनिशियल बर्स्ट था मेरे लिए, सो इट वाजंट लाइक यू कैन से अ ब्रेकअप, जो कि मोस्टली लोगों के साथ होता है. इट वाज जस्ट यू कैन से सेल्फ रियलाइजेशन दैट आई एम नॉट गुड एट एनीथिंग, सो आई जस्ट हैव टू लाइक वर्क ऑन माई बॉडी फर्स्ट. एंड आई डिडंट हैव एनी काइंड ऑफ नॉलेज दैट टाइम. सो ना तो कुछ डाइट, ना तो कुछ वर्कआउट. सो मेरे को जो ऊपर से लाइक मेरे कोच वगैरह मेरे को बताते थे, लाइक अभी मेरे को पता है कि वो कोई साइंटिफिक वे से नहीं था. इट वाज जस्ट प्रॉपर जिम डूड वाला टिप्स, बट स्टिल आई फॉलोड दैट वेरी डेडिकेटली. एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली यू कैन से आई एंटर्ड इनटू फिटनेस. बिकॉज भले वो फेक आइडियाज भी रहेंगे तो भी, but I would suggest कि like if you are into your 20s, right? So first of all you have to work on your body, and not just workout, you can start with diet part as well. Diet में ऐसा नहीं होता कि like so called आपको प्रोटीन ही खाना है, because बहुत से like जो टीनेजर्स होते हैं उनके केस में होता है कि like प्रोटीन्स वगैरह खाने से ही बॉडी बनेगी. In short, like I'm referring to supplements. It's not like that. Like जैसे कि मैंने बोला like you have to like you have to start your earning, right? So that was just because of this, क्योंकि अगर आप खुद से earn करोगे तो आप खुद के ऊपर spend कर सकते हो, and this is how you should spend on yourself, like that. I want to add something to this point.
पर्सनली आई बिलीव ऑन लाइफस्टाइल चेंजेस रादर देन क्विक फिक्सेस। तो आपके 20s में आप ऐसा गोल मत रखो कि मुझे 6 महीने में बॉडी बनाना है, मुझे 1 साल में बॉडी बनाना है, नहीं तो मेरे बड़े बहन की शादी है, मेरे बड़े भाई की शादी, तो मुझे लहंगा पहनना है, तो फैट लॉस करना है। रादर देन दिस यू कैन एक्चुअली इनकलकेट हैबिट ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर न्यूट्रिशन प्लान एंड एक्सरसाइजिंग एवरी डे। ये एक लाइफस्टाइल चेंज हो सकता है और आपके पूरे लाइफ टाइम में आपको ये चीज़ हेल्प कर सकती है। 20s में हमको हैबिट्स जल्दी से लग जाती है, तो अगर 20s में ही आपको डेली एक्सरसाइज करने की और अच्छा खाना खाने की आदत अगर लग जाती है तो आप लाइफ टाइम के लिए वो हैबिट सस्टेन कर सकते हो। At the end, what one thing you would like to add to this podcast which will help all the people who are watching this video? ओके सो आई वुड से दैट जो भी मैंने पॉइंट्स वगैरह बताए, सो जो मेरे को पर्सनली अभी तक जिस चीज़ ने हेल्प की है दैट इज़ ऑलवेज बी अ गुड लिसनर। लाइक इवन लाइक आई वुड से दैट आई वॉज प्रॉपर लेकिन से लाइक एकदम वो गुस्से वाला आदमी, बट वो दैट थिंग इज नॉट गोना हेल्प यू आउट, राइट? सो यू जस्ट हैव टू कीप काम, बिकॉज इस एज में ऐसा होता है कि लाइक हम ये सबसे बेस्ट है, ऐसा हम लोग को प्रूव करना होता है, बट ऐसा कभी होता नहीं है। यू हैव टू लिसन टू अदर्स, यू हैव टू लिसन टू योर मेंटर्स, जस्ट डू दैट एंड एवरीथिंग विल गेट सॉर्ट। That's all for today. Thanks a lot everyone for watching this video. I hope ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आप 20s में हो तो आपको कौन सी चीज़ें करनी चाहिए, ये वीडियो देखिए, आपको वो चीज़ें पता चली रहेगी। एंड जस्ट ट्राई एंड प्रैक्टिस ऑल द थिंग्स विच वी हैव मेंशन इन दिस वीडियो एंड लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन आपको ये वीडियो देख के कैसा लगा। एंड डू शेयर दिस वीडियो विथ ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स हु आर इन देयर 20s. Thanks a lot again.